Okay, so let's start with thermosetting plastic. The plastic which do not get deformed on heating even at high temperature are called thermosetting plastics. What are the thermosetting plastics? I am repeating once again, just listen to me carefully. Plastics which do not get deformed. देखिए, थर्मोप्लास्टिक वो थे जो कि बहुत आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाते थे, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन है? जो आसानी से डिफॉर्म्ड नहीं होते हैं. ठीक है? These plastics harden on heating and hence they cannot be reshaped repeatedly. क्या? क्योंकि ये प्लास्टिक हार्ड होते हैं, है ना? तो इसीलिए हम इन्हें गर्म करके बार बार इनको नए नए आकार नहीं दे सकते. Bakelite and melamine are the common examples of thermosetting plastics. Dear students, these two, bakelite and melamine, are the example of thermosetting plastics, and both of them are very important examples of thermosetting plastic, and this question is important for NTSC and Science Olympiad. Some uses of thermosetting plastics are: Teflon is used for making non-stick cookwares and as corrosion-proof coating in chemical industry. Bakelite is used to make electrical switches, plugs, for making tabletop, laminates, combs, fountain pens, etc. Melamine is used for making unbreakable dinnerware and decorative objects. So all these 3 points are very simple. Because of such type of wonderful properties, thermosetting plastics are used in different areas. Now come to the very important question, that is, what are the difference between the thermosetting and thermoplastic? So first point says that thermoplastics can be reshaped, whereas thermosetting plastics cannot be. Thermoplastics become soft and get deformed on heating. Thermosetting plastics, they do not melt. PVC and polythene are the examples, whereas in thermosetting, melamine and bakelite are the examples of thermosetting. So all these 3 differences are, I think, very much clear and easy to you all. Now, इतना पढ़ने के बाद जब हमने इतना सब जान लिया, प्लास्टिक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बट स्टिल प्लास्टिक इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, दुनिया के लिए आज के समय में प्लास्टिक बहुत बड़ी समस्या है. ठीक है, अब प्लास्टिक ये बहुत बड़ी समस्या क्यों है, देखते हैं. Plastics and the environment. Plastics are an integral part of our life but have several disadvantages too. Plastics are durable and take a very long time to degrade. देखिए बेटा, जहाँ हमने बोला कि ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है इसकी, क्या कि ये आसानी से खराब नहीं होता क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, तो यही प्रॉपर्टी आगे जाने पर हमारे लिए एक समस्या का रूप ले लेती है, जिसके कारण क्या हो गया, ये सॉइल पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, वाटर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, क्योंकि ये खराब ही नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, डिग्रेड नहीं होता. ओके, let us discuss some of the disadvantages associated with plastic. First, plastics are non-biodegradable, hence do not decay or rot by the natural processes. Therefore, plastic waste causes soil pollution.
ओके अभी बताया ना मैंने आपको कि क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब क्या नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, और डिकम्पोज नहीं होगा तो क्या होगा, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। एक्यूमुलेट यानी एकत्रित, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इकट्ठा होगा तो क्या करेगा, जमीन में सॉइल में इकट्ठा होगा तो सॉइल को पॉल्यूट करेगा। चलिए ना कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, दिस comparison between the time taken by the plastic and some other materials to decompose is shown in the table. Okay, in this table as you are seeing that some examples of material and waste are given here, and the category of material is also mentioned, like whether these materials are biodegradables or non biodegradables, as well as one more column is there where they mention about the timing of decomposition. So this you can read by your own. So now come to the next point. Dumping plastic is in water bodies causes a threat to aquatic life. Dear, as I told you that plastic never ever decompose. देखो अभी आपने कई ऐसे केसेस भी सुने होंगे या देखे होंगे, कुछ अगर आपने कुछ YouTube पे आप कुछ वीडियोस वगैरह आपने देखे होंगे या न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा। कई बार क्या होता है मालूम, ये जो फिशरमैन होते हैं ना, जब ये अपने नेट डालते हैं, कहाँ पे, समुद्र में डालते हैं ना ये नेट, मछली पकड़ने के लिए जब जाते हैं तो कभी कभी क्या हो जाता है, इस नेट में जो मछलियाँ नहीं फंसती या इनके जो पुराने नेट हैं उनके कुछ टुकड़े रहते हैं, वो मछलियाँ निगल जाती हैं, कछुए फंस जाते हैं उसमें, तो क्या हो जाती है, इन जानवरों की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि ये डिग्रेड नहीं हो रहा ना बेटा, तो जानवर अगर इसको खा लेंगे तो क्या होगा, उनकी एक्वेटिक एनिमल्स अगर इनको खा लेंगे तो क्या होगा, उनकी बॉडी में जाके ये क्या करेगा, चोक कर देगा उनको, है ना, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। बर्निंग प्लास्टिक रिलीजेस what toxic gases which cause air pollution. Thus it may result in the various health hazards. अब देखो, आप एक तो नेचुरली वो डिग्रेड नहीं हो रहा, अब आप इसको जलाकर अगर नष्ट करना चाहते हो तो क्या होता है, जब आप इसे जलाते हैं तो कई जहरीली गैसें ये रिलीज करता है, और ये जहरीली गैसें भी कहाँ जाकर मिलेंगी, आपके एयर में, एयर में मिल गई यानी एनवायरनमेंट में आ गई, एनवायरनमेंट में आ गई तो क्या हो गया, आपके बॉडी के अंदर आसानी से चली जाएगी, जिससे आपके स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्लास्टिक बैग्स carelessly thrown on the road find ways into the drain with choke drains and sewage system. This results in the overflow of sewage water. The stagnant water becomes a breeding ground for the mosquitoes that causes diseases like malaria. ठहरा हुआ पानी, स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ जो पानी होता है, उस पानी पर क्या होते हैं, मॉस्किटोज अपने एग्स ले करते हैं, और जहाँ से ही ये ब्रीडिंग साइट या ब्रीडिंग ग्राउंड की तरह बिहेव करता है आपके क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं डिजीज कॉजल ऑर्गेनिजम्स, या हम इनको कहते हैं कैरियर्स, वेक्टर्स। Plastic bags thrown in the garbage with food in them are sometimes consumed by the animals like cows. They may choke their respiratory system and lead to death of animals. 2 points before only I told you about the same fact with the aquatic animals also. If plastics remains in the soil for a long time, they block the seepage of rainwater through the soil, causing problems in recharging the groundwater. पॉइंट समझ आया होगा आपको क्या बोला है, अगर प्लास्टिक लंबे समय तक जमीन के अंदर है तो आपको क्या नहीं कर पाओगे, ये क्या कर देगा, दे ब्लॉक द सीपेज ऑफ रेन वाटर थ्रू द सॉइल, क्या करेगा, उस एरिया में पानी को इकट्ठा होने नहीं देगा ठीक से, तो आपका क्या नहीं होगा, वो पानी फिर से कहाँ नहीं पहुँच पाएगा, जमीन के अंदर नहीं पहुँच पाएगा। Use of recycled plastic bags to keep food items in them is also harmful for
हेल्थ। हमेशा याद रखें, कभी भी किसी भी खाने की वस्तु को या खाने के आप मार्केट से खरीद के लेके आते हैं ना, फ्रूट्स लेके आए हैं, आपके कुछ भी ईटेबल्स लेके आए हैं, उन ईटेबल्स को लंबे समय तक प्लास्टिक बैग्स में ना रखा करें। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेज टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन। ओके, ये तो समझ में आ गया भाई कि बहुत सारी समस्याएं प्लास्टिक दे रहा है। अगर प्लास्टिक से इतने सारे फायदे हैं तो प्लास्टिक के बहुत से नुकसान भी हैं। चलो, फायदे भी पढ़ लिया, नुकसान भी पढ़ लिया, बता दिया कि ऐसा नुकसान पहुंचाता है। अब क्या करना है? अब करना है ये कि इस समस्या को हल कैसे करें। ठीक है, तो क्या करेंगे? ways to reduce plastic pollution. First point says the best way to reduce pollution caused by the plastic is to recycle them, although it is very costly process. ठीक है, देखिए बेटा, अगर बीमारी बड़ी है, समस्या बड़ी है और समस्या को हल करने के लिए अगर हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है तो हमारे जीवन से ज़्यादा तो पैसे नहीं मायने रखते, है ना। इसीलिए बोला जा रहा है रिसाइकलिंग, प्लास्टिक की रिसाइकलिंग एक कॉस्टली प्रोसेस है, बट ये ज़रूरी है, इसलिए हमें ये करना आवश्यक है। यूज जूट, क्लॉथ और पेपर बैग इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग्स व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब आप मार्केट में परचेसिंग के लिए जाते हैं ना, तो अब आप क्या करें, प्लास्टिक बैग्स, दुकान में जाने के बाद प्लास्टिक बैग्स की डिमांड करने की बजाय आप घर से ही जूट के या क्लॉथ बैग्स अपने साथ लेकर जाएं। ठीक है, रीयूज प्लास्टिक बैग्स एंड कंटेनर्स फॉर द अदर पर्पसेस इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग देम। ज़्यादा से ज़्यादा आप सबने पढ़ा होगा रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज का कंसेप्ट, 3 R's। Now try to buy products that have less plastic packaging, okay, and dispose of plastic bags properly. The municipal corporation has made available green bin for collecting biodegradable waste and blue bin for collecting non-biodegradable waste like plastics. So whenever we are throwing our garbage, remember that how to use this blue and green bin. Remember the 4R formula: reduce, recycle, recover. Okay, and follow it to minimize the damage caused by the plastic to the environment. So each of us should take up the responsibility to keep public places clean and free from plastic. This is what our moral duty. ठीक है, ये हम सब के लिए आवश्यक है ना। तो एक फैक्ट पॉइंट भी दिया हुआ है कि दैट साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस फोटो डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय सनलाइट, है ना। ये एक रिसर्च चल रही है इसके ऊपर। सून वी विल गेट द न्यू वैरायटी ऑफ प्लास्टिक आल्सो व्हिच कैन बी डिकम्पोज्ड बाय इट्स ओन। ओके, सो दिस ऑल अबाउट आवर चैप्टर सिंथेटिक or that fiber one. Okay, synthetic fibers and plastic. Here our chapter is over. So if you have any doubt, just ask to me.